بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب میں خوش آمدید۔ گزشتہ ماہ اپنے ایک عزیز کے بیٹے کے عقیقے میں شریک ہونے کے لیے مجھے گجرات جانے کا اتفاق ہوا۔ کوسٹر میں سوار ہوا۔ اس روز رش بہت زیادہ تھا، کوسٹر میں سیٹ نہ ملی، لیکن مجھے ہر حالت میں پہنچنا تھا، اس لیے سفر کرنا قبول کر لیا۔ ابھی کھڑے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کسی نے پیچھے سے میرا نام پکارا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میرا ایک عزیز دوست بشیر احمد، جو کہ حیدرآباد میں رہتا تھا، ایک سیٹ پر براجمان تھا۔ میں سواریوں میں جگہ بناتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک بزرگ کو، جو اس کا ہمسایہ تھا، تھوڑا سا آگے کر کے میرے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ پھر ہم تینوں دو سیٹ پر بیٹھ گئے۔ سفر شروع ہوا تو حال و احوال کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگیں۔ اچانک ساتھ بیٹھے ہوئے بزرگ نے جنات کا قصہ چھیڑ دیا۔ ایک واقعہ سنایا کہ میں اپنے ایک عزیز کے ساتھ ایک جلسے میں واپس بستی جا رہا تھا۔ جلسہ ایک قریبی بستی میں تھا۔ جب جلسہ ختم ہوا تو رات کافی ہو چکی تھی، اور ہم نے جس راستے کا انتخاب کیا وہ شارٹ کٹ ضرور تھا، لیکن عام راستہ نہیں تھا، بالکل مختلف لوگوں کی زرعی رقبے سے گزر کر بستی میں پہنچتا تھا۔ ابھی ہم راستے میں ہی تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک درخت کو آگ لگی ہوئی ہے، اور آگ کے شعلے اتنے بلند تھے جیسے آسمان کو چھو رہے ہوں۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا کہ اتنی تیز آگ لگی ہوئی ہے کہ آنن فانن قریبی علاقوں کو اور فصلوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر بالکل ختم کر دے گی۔ لیکن حیرت اس بات پر تھی کہ آگ کے شعلے اتنے بلند تھے کہ کافی دور تک اس کی روشنی پڑ رہی تھی، لیکن پھر بھی قریبی بستی کے لوگ اس آگ کو بجھانے کے لیے موجود نہیں تھے۔ میں اپنے ساتھی کو مخاطب کرتے ہوئے چلایا، یا رب، اب کیا ہوگا؟ کس بات کا؟ اس نے پوچھا۔ دیکھو، ایسی آگ لگ رہی ہے، یہ بہت زیادہ نقصان پہنچائے گی، اور ابھی تک اس کو بجھانے کے لیے قریبی مکینوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ لگتا ہے آج بہت بڑا حادثہ ہو کر رہے گا۔ میرے ساتھی نے مجھے خاموش رہنے کو کہا، لیکن میں نے اس کے اشارے کا مطلب نہ سمجھ سکا۔ اس نے کہا، جلدی جلدی چلو تاکہ بستی سے لوگوں کو بلا لائیں اور اس آگ پر قابو پائیں، ورنہ یہ آگ ارد گرد کی تمام فصلوں، درختوں اور قریبی بستی کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ ہم دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے چلنے لگے۔ خوف سے میرا برا حال تھا۔ میرے قدم اتنے تیز چل رہے تھے کہ میں اپنے ساتھی سے کافی آگے نکل چکا تھا، لیکن اس افراتفری میں بھی میں نے محسوس کیا کہ میرا یہ ساتھی آیت الکرسی پڑھتا ہوا آ رہا ہے۔ جب ہم بستی کے قریب پہنچے تو میں نے ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ نہ آگ تھی اور نہ آسمان سے باتیں کرتے ہوئے شعلے نظر آ رہے تھے۔ میں حیرانگی اور پریشانی کے عالم میں اپنی سانسیں درست کرتے ہوئے اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا، ملک صاحب، وہ آگ اور شعلے تو نظر نہیں آ رہے، میرے خیال میں ہم کافی آگے نکل آئے ہیں۔ میرے ساتھی نے مجھے بازو سے پکڑ کر آگے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، وہ آگ نہیں تھی بلکہ جنات کی کارستانی تھی۔ جنات کا نام سنتے ہی مجھے گھبراہٹ سے چکر آنے لگے۔ ملک صاحب نے مجھے تھام لیا اور بلند آواز میں آیت الکرسی اور سورہ ناس پڑھ کر مجھ پر پھونک مارتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں، اب ہم ان کی دسترس سے کافی دور آ گئے ہیں، اب یہ جنات ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کئی مرتبہ میرا اس مخلوق سے واسطہ پڑا ہے، جب ہم ان کو تنگ نہ کریں تو وہ بھی ہمیں تنگ نہیں کرتے۔ تم بے فکر ہو جاؤ، اور ہاں، بستی میں ان کا ذکر کبھی نہ کرنا۔ خواہ خواہ لوگ اس زرعی رقبے پر فصل کاشت کرنا اور آنا جانا چھوڑ دیں گے، اور پھر یہ مخلوق یہاں مستقل اپنا ٹھکانہ بنا لے گی۔ لیکن ملک صاحب کی ہمت بندھانے اور مجھے میرے گھر چھوڑنے کے باوجود مجھے بخار آ گیا۔ کئی روز تک میں بخار میں مبتلا رہا۔ اسی دوران مختلف عاملوں بزرگوں سے دم بھی کرواتا رہا، اور شکر اللہ کا میں ٹھیک ہو گیا۔ جب میں مکمل صحت یاب ہو گیا تو ایک دن میں انہی ملک صاحب، جن کا نام عبد الرزاق تھا، ان سے پوچھا، ملک صاحب، آپ کو کیسے پتہ چلا یہ سب جنات کی کارستانی ہے، اور آپ اس واقعے کے وقت قدرے مطمئن بھی تھے؟ اب اس قصے کو رہنے دو، انہوں نے ٹالنے ہوئے انداز میں مجھے کہا، لیکن میرے تجسس کو دیکھتے ہوئے بولے، یہ 50 برس پہلے کا ذکر ہے۔ جولائی کا مہینہ تھا، گرمی اپنے عروج پر تھی۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر میں اکیلا پل کی طرف چل پڑا۔ میں نے سوچا تھا کہ پل پر کچھ دکانیں ہیں، میں کچھ دیر کھلی فضا میں بیٹھ کر اپنے یار محمد اکرم کی کریانے کی دکان پر گپ شپ لگاؤں گا۔ رات گئے ہوا چل پڑے گی تو واپس گھر آ سکوں گا۔
आकर सो जाऊंगा। अपने प्रोग्राम के मुताबिक मैं अकरम की दुकान पर पहुंचा। उससे सलाम दुआ के बाद इधर उधर की बातें होने लगीं। इसी दौरान जो भी दुकान पर सौदा लेने आता कुछ देर के लिए हमारी बातचीत में शरीक हो जाता। इसी वक्त हमारी बस्ती चंद घरानों पर मुश्तमिल थी, लिहाजा बस्ती के लोग एक दूसरे से अच्छी तरह वाकिफ़ थे और एक दूसरे से अलग सलग रखते थे। हमें बातें करते हुए तकरीबन 3 घंटे गुजर गए। फिर हल्की हल्की हवा चलने लगी तो मैं अपने घर की तरफ चल पड़ा। अकरम अपनी दुकान में सोता था ताकि रात को कोई चोर उचक्का इसकी दुकान में नकब ना लगा ले। उन दिनों अक्सर बस्तियों में चौकीदार का बंदोबस्त नहीं होता था, जिसकी वजह से दुकानदार लाजमी अपनी दुकान में सोते थे। बहरहाल में रात के इस पहर अकेला चलता हुआ बस्ती की तरफ आ रहा था कि मैंने आगे कुछ फासले पर देखा कोई औरत तन्हा बस्ती की तरफ चली जा रही है। मैंने चलने की रफ्तार तेज़ कर दी थी कि करीब पहुंचकर इससे पूछूं कि रात के इस पहर वो कहाँ से आ रही है। फिर मेरे दिल में अजीब ख्याल आया, शायद इसे किसी की मदद की ज़रूरत हो, क्योंकि बस्ती की औरतें पर्दा नहीं करती थी। वो बस्ती के मर्दों से बातें भी कर लेती थी, जो किसी को मायूब नहीं लगता था। ये रीत और रवाज बरसों से चला आ रहा था। मैंने जब इस औरत के करीब पहुंचकर इसे पुकारा तो इसने पलटकर मेरी तरफ अपना चेहरा कर लिया। मैंने बगौर देखा, वो मुझे अपनी बस्ती की नहीं लगी। चांद की चांदनी में इसका चेहरा साफ और फाजिया नज़र आ रहा था। इस अजनबी औरत से मैंने पूछा, कौन हो तुम और रात गए किधर से आ रही हो? मेरे सवाल पर वो मुझसे मुखातिब हुई, मैं अपने घर से भाग कर आई हूँ और किसी पनाह की तलाश में हूँ। मैंने इसके इतने करीब पहुँच गया कि अब मेरा और इसके दरमियान सिर्फ 2-3 फुट का फासला रह गया था। मैंने इसके चेहरे को गौर से देखा। वो औरत नहीं बल्कि 20-22 बरस की लड़की थी। क्या तुम्हारा इस बस्ती में कोई अजीज़ वगैरह रहता है? मैंने इससे पूछा। नहीं, मैं घर से भागकर जब बस अड्डे पर आई तो जो बस जाने के लिए तैयार खड़ी थी इसमें सवार हो गई और यहाँ उतर गई हूँ। मुझे ये बस्ती नज़र आई तो मैं इधर चल पड़ी। तुम रहती कहाँ हो? खानपुर, और मेरा नाम आसिया है। मैं इसके घर से भागने की वजह दरियाफ्त करने लगा तो इसने बताया, मेरा बाप नशा करता है, कोई काम नहीं करता, जिसकी वजह से पहले इसने मेरी बड़ी बहन को बेचा। अब मुझे एक ढेर उम्र आदमी के हाथ फ़रोख्त करना चाहता है, लेकिन मैं अपने एक कज़न से मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हारा कज़न तुम्हारे बाप को नकद रकम देकर तुम्हारे साथ शादी क्यों नहीं करता? इसके वालिदैन मेरे बाप को पसंद नहीं करते। इनका कहना है वो शादी के बाद आए रोज़ नशा करने के लिए, पैसे मांगने के लिए हमें तंग करेगा। तो फिर तुम अपने कज़न के साथ खुफिया तौर पर निकाह करके किसी दूसरी जगह चली जाती या फिर इसको अपने साथ यहाँ लेकर आ जाती। अब यहाँ अकेली तुम कैसे रहोगी? मैंने सवाल किया तो इसने जवाब दिया, मैंने अपने कज़न को ऐसा करने को कहा था लेकिन वो डरपोक है। कहता है तुम्हारा नशई बाप सारी ज़िंदगी मेरे घर वालों को तंग करता रहेगा। बल्कि इसने मुझे मशवरा दिया कि कुछ अरसा इंतज़ार कर लूँ, शायद तुम्हारा बाप रिश्ते के लिए मान जाए। फिर तुम इंतज़ार करती। यूँ अकेले घर से भाग कर आना भी तो जवान लड़की के लिए मुनासिब नहीं, कुछ भी हो सकता है। मैं इसके चेहरे को गौर से देख रहा था। वो वाकई खूबसूरत थी और इसकी आवाज़ भी बहुत ही ज़्यादा महसूर कुन थी। आज सुबह मेरा बाप इस अढेर उम्र शख्स से रकम लेकर घर आया था और मेरी माँ को बताया कि कल आसिया का निकाह फजल दीन से कर दिया जाएगा, तुम इसको तैयार कर देना। मेरी माँ इसकी बात सुनकर खामोश हो गई थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि इसने कोई बात की तो वो इसे हस्बे साबिक मारने से भी दरेक नहीं करेगा। जब मेरा बाप घर से बाहर चला गया तो माँ ने फौरी तौर पर मेरे इस कज़न अहमद अली को बुलाया, जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। अहमद अली फ़ौरन हमारे घर आया तो मेरी माँ ने तमाम सूरत हाल से इसे आगाह किया। तो इसने अपने जवाब में कहा कि ममानी, आप ऐसा करें, कुछ दिनों के लिए आसिया को दूर के रिश्तेदारों के पास भेज दें। मैं इसी दौरान इतनी रकम इकट्ठी कर लूँगा कि मामू को वो रकम इस शख्स को वापस लौटाकर मेरी शादी आसिया के साथ कर देंगे। ये मशवरा मेरी माँ को पसंद आ गया। इसने मुझे लियाकतपुर में रहने वाली एक अजीज़ के पास चले जाने को कहा। मैं अपनी मोहब्बत पाने के लिए इतनी बेचैन थी कि फ़ौरन बस अड्डे पर आई और बस में सवार होकर चली आई। लेकिन लियाकतपुर अपने अजीज़ों के यहाँ इसलिए नहीं गई कि वहाँ मेरा बाप मुझे ढूंढ लेगा, लिहाजा इस बस्ती के करीब उतर गई। अपनी रुदात सुनाकर वो खामोश हो गई। उसकी आंखों में नमी थी। अब तुम यहाँ आ गई हो तो कहाँ रहोगी? अगर चाहो तो मेरे घर चली चलो,
जहाँ मेरे माँ बाप और बहन भाई रहते हैं। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती। अलबत्ता अगर मुझे आबादी यानी कि बस्ती से दूर किसी ऐसे मकान में तुम ले जाओगे और वहाँ रहने का बंदोबस्त कर दोगे जहाँ किसी को भी मेरी मौजूदगी का पता न चले, तो मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद रहूँगी। यहाँ तुम्हारा जानने वाला कोई नहीं है, फिर तुम्हें किस बात का डर है? मैंने उलझन से पूछा। जब बस्ती की औरतें अपने दरमियान एक अजनबी औरत को देखेंगी तो वो एक दूसरे से जिक्र करेंगी और होते होते मेरी मौजूदगी की खबर मेरे बाप तक पहुंच सकती है। लिहाजा मुझे किसी ऐसी जगह का बता दो जिसका तुम्हारे सिवा किसी को इल्म ना हो। इसकी बात सुनकर पहले तो मैं परेशान हुआ, फिर एकदम मेरे जहन में एक रकबे पर बने डेरे का ख्याल आया जो परसों से वीरान पड़ा था। मैंने इसे इस बारे में बताया तो इसने फ़ौरन वहाँ रहने की हामी भर ली। फिर हम बस्ती से दूसरी तरफ जाने वाले रास्ते पर चल पड़े। इस वीरान डेरे पर जा बजा भूसे का ढेर था और बैठने के लिए कोई कपड़ा वगैरह भी नहीं था जिसे बिछाया जा सके। अलबत्ता एक जानिमाज़ रखी थी, मैंने वो जानिमाज़ बिछा दी। तुम ऐसा करो, यहाँ बैठ जाओ, मैं घर से चारपाई लेकर आता हूँ। चारपाई की ज़रूरत नहीं, मैं इस मसल्ले पर ही सो जाऊँगी। अच्छा, तुम भूखी होगी, कुछ खाने पीने के लिए तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। मेरी माँ ने मुझे रोटी और सालन बांध कर साथ दिया था जो मैंने बस से उतरकर रास्ते में खा लिया था। अब मुझे भूख नहीं लग रही है। जब मैं वापस आने के लिए दरवाजे से बाहर निकलने लगा तो चलते चलते इससे पूछा, यहाँ अकेले सोते वक्त तुम्हें खौफ तो महसूस नहीं होगा? वहाँ घर में अपने नशेई बाप के डर से अक्सर अपने घर की छत पर या इसके चौबारे पर अकेली सोने की आदी हूँ। फिर मैं इसको अकेला छोड़कर वापस घर आ गया और सहन में बिछी हुई चारपाई पर लेट गया। घर वाले पहले ही सो चुके थे। मैं लेट तो गया था, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर चली गई थी। बार बार मेरी आंखों के सामने इस जवान और खूबसूरत लड़की का चेहरा घूम रहा था। मैंने तो बहुत कोशिश की कि किसी तरह नींद आ जाए, लेकिन जब ख़यालात में सिन्फ़े मुखालिफ के हुस्न और जवानी की आग भड़क रही हो तो नींद भला कहाँ आती है। एक तन्हा लड़की का अपनी दस्तरस में मौजूदगी का एहसास दिलो दिमाग को अपनी गिरफ्त में लिए हुए था, जो किसी पल भी चैन लेने नहीं दे रहा था। जब काफ़ी कोशिश के बाद इस लड़की का खुमार जहन से ना उतर आया तो मैं एकदम अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और इसी वीरान डेरे की तरफ चल पड़ा। जब डेरे का दरवाज़ा अबूर करके अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि आसिया अभी तक जाग रही थी और मसल्ले पर बैठी हुई थी। मैं इसके करीब पहुंचा तो वो मुझसे मुखातिब हुई। मैं जानती थी तुम मर्द साथ एक जवान लड़की को देखकर अपने होश व आवाज़ खो देते हो। मुझे यकीन है तुम भी इसी मकसद के लिए आए हो। वाकई तुम्हारे सरापे और हुस्न ने मुझे दीवाना बना दिया है और मुझे बेचैन कर दिया है। मुझे किसी पल भी सुकून नहीं आ रहा। मेरी बात सुनकर वो अपनी जगह से फ़ौरन खड़ी हुई। मैं मर्द साथ की हविस को अच्छी तरह समझती हूँ। जब तुम अकेली लड़की को देखते हो तुम्हारे ज़हन पर हविस का जुनून सवार हो जाता है। मैं इसकी बातों की परवाह किए बगैर इसकी जानिब बढ़ रहा था और इसके बिल्कुल करीब पहुँच चुका था। वाकई जब मर्द एक जवान अकेली लड़की के इतने नज़दीक होता है तो अपने होश व आवाज़ खो बैठता है। मेरे साथ भी यही सूरत हाल पेश आ रही थी। मैंने जज्बात से मखमूर अंदाज में आसिया से कहा, तुम मेरी बन जाओ, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। नहीं, मेरी मोहब्बत मेरा सब कुछ है, मैं अपने महबूब को धोखा नहीं दे सकती, इसने अटल लहजे में कहा। लेकिन मुझ पर तो इस वक्त जुनून सवार था। मैं इसकी तलब में दीवाना हुआ जा रहा था। इसी कैफियत में इसका हाथ पकड़ने की गर्ज से मैं आगे बढ़ा तो वो मेरी नीयत को भांप कर भाग खड़ी हुई। मैं भी दीवाना वार इसके पीछे लपका। वो भागते हुए डेरे से निकल आई। मैं इसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहा था। फिर वो भागते भागते यकायक एक दरख्त पर चढ़ गई। मैं इस दरख्त के नीचे पहुंचकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन एकदम दरख्त को आग लग गई। मैं फ़ौरन इस दरख्त से दूर हट गया। आसिया इस आग के शोलों में से नमदार हुई और कहका लगाते हुए मुझसे मुखातिब हुई, तुम इंसान लालची, हविस के पुजारी और बदकिरदार होते हो। अकेली लड़की को देखकर अपने दीन और मज़हब को भी फरामोश करके दरिंदे बन जाते हो और मशबूल लड़की की इज्जत को पामाल करने से भी नहीं चूकते। तुमने मुझको अपनी हविस का निशाना बनाना चाहा, लेकिन तुम नहीं जानते मैं तुम्हारी तरह इंसान नहीं हूँ।
बल्कि जिनज़ादी हूँ। तुम खुशकिस्मत हो जो मुझे छू नहीं सके। अगर मुझे छू लेते तो जलकर भस्म हो जाते। जाओ, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन इतना जान लो, जब भी रात को इस दरख्त के करीब से गुजरोगे तो इस दरख्त पर आग के शोले देखोगे, लेकिन तुम डरना नहीं, तुमको इस आग से कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। लेकिन अगर इस वक्त तुम्हारे साथ कोई और होगा तो वो ज़रूर डर जाएगा। ये कहकर वो भड़कते हुए शोलों में गायब हो गई और फिर एकदम आग भी ठंडी हो गई और दरख्त पहले की तरह हो गया। इस मंज़र ने मुझे इस कदर दहशत ज़दा कर दिया कि मालूम नहीं किस तरह मैं घर पहुंचा। कई दिन तक मैं बुखार में चलता रहा। बाद में घर वालों ने बताया कि तुमको इतना तेज़ बुखार हो गया था कि कई दिन मुसलसल इलाज और दम दरूद के बाद तुम्हें होश आया। अब तुम इस दरख्त पर बुलंद होते शोलों का राज जान चुके हो, लेकिन जब तुम अकेले इस दरख्त के करीब से गुजरोगे तो कोई आग वगैरह नहीं होगी। लेकिन जब भी मेरे साथ रात को इस दरख्त के पास से गुजरोगे तो इस दरख्त को इसी तरह आग में जलता हुआ पाओगे। मलिक साहब अपनी अजीब कहानी सुनाकर खामोश हो गए थे, लेकिन इनकी आंखों से झांकती दहशत से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो हैबतनाक मंजर आज भी इनके कल्ब और जहन पर इसी तरह तरोताज़ा है और शायद उम्र भर वो इस वाक़े को फरामोश न कर सकेंगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल कहानी हब सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।